All right, class. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman rahim. Um, I already have noted the things that I asked from you guys that you are just having problem in set language notation. So I'm going to share with you the screen. जैसे ही screen display हो तो आप मुझे inform कीजिएगा कि screen is visible to you, right? तो हम इन सब objectives जो हैं उनको सब cover करना start करते हैं. ठीक है? It's visible, sir. Thank you. बस ठीक है. So let me write the topic. Okay, got it. All right. The first thing, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको पता है कि वेल डिफाइंड सेट, नल सेट, इनके कॉन्सेप्ट्स तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आने चाहिए. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पीछे क्या क्या चीजें हैं मैं आपको क्विकली रिकैप बता देता हूँ. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स में आपको क्या क्या चीजें आना चाहिए, ठीक है, जिसकी मदद से हम आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे इंशाल्लाह ताला. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर आप में से किसी की लैकिंग है ना, वो नहीं होनी चाहिए. अगर आपको पहले से ही पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं तो एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. और ये तो और अच्छा हो जाएगा कि आप जो है वो मुझे रिस्पॉन्सेस देंगे सब लोग, ठीक है. तो ये बताइए कि ये सिंबल किस चीज का है, जल्दी बताइए. Universal set. ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या, व्हाट डज यूनिवर्सल सेट मींस, क्या होता है ये यूनिवर्सल सेट? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं बेटा. अब देखें, चीजें आपने पढ़ी हुई है ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. अब जहाँ पे हम आगे स्टडीज पे आएंगे तो फिर वहां पे डिस्कशन कम होगा और मेरी एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगी. जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, तो आपसे मैं जो थोड़ा जानना चाहूंगा, तो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा इस तरीके से. जी, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? Sir, the outermost diagram. अरे यार, सीधी सीधी आउटर मोस्ट क्या मतलब, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स. यूनिवर्सल का मतलब, यूनिवर्स का मतलब ऑल, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स. जिसमें सारे सेट्स इंक्लूडेड हो. जी, जिसमें सिंपली सारे सेट्स इंक्लूडेड हो, ठीक है. ऑल, यूनिवर्सल सेट मींस ऑल, ठीक है. सेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है. Sir, कॉम्बिनेशन ऑफ set ऑल सेट्स. बोले बोले अरीना. set which has elements of all the related sets. बिल्कुल, contains all the sets. Universal set is a set which contains all the sets, right? If you have A set, B set, C set, D set, so if you have 4 sets and having 1,000 elements in Yes. one set, 1,000 elements in second set, 1,000 elements in third set, so all the combination of elements, all the sets comprises of a single set is known as a universal set. Okay, you are familiar with the symbol. Excellent. Now, what does this symbol means? Come on, quickly. Intersection. What does intersection mean? Intersection, sir. What does intersection means? And what is the Sir, work of minus. intersection? Sir, Intersection. that which is common in both sets. Yes. Universal is comprises of all set. We can say universal set is comprises of all sets. And if you're talking about intersection means common
common in two sets or either three sets or whatever number of sets we have. Intersection means common. All right. And what about this sign? This means what? Union. Union. And what is the use of union? Union gives you the concept of all together. All together. Yes. Yes or no? Union gives you the concept of all together, or we must say united. Unity between sets. Oneness. Yes, unity So between so like universal and union sets, like union is same. unity between sets. Fine. Okay. Sir, Yes. joining two or more things into one. Can you repeat, Arina, what you want to say? क्या कहना चाह रही हैं आप? More things into one. Yes, all things comprises then, for example, if I'm asking from you, set A contains 1 and 2, set B contains 2 and 3. So if I'm asking from you that what would be the result of A union B, so you must answer A union B is equals to 1, 2, 3, right? And you tell me what does this means? I must write here. This sign, this one sign. Let me hide this one sign. Yes. What does complement means then? Not a part of A. Excellent. Minus. Not a part of A. A complements not a part of A. And someone has said, has responded that minus. Minus what? Minus what? A. Minus A from what? From the universal set. Yes, perfect. Excellent. So this is the complement, right? And one another thing, if you just tell me, what does this sign means? This is nothing but null set. This is nothing but null set, or we can also say this thing, null set or empty set, right? Yes, we also can say empty set. Perfect. All right. And yes, there is one more symbol of null set is when you just open the curly bracket, you do not write anything inside it. So this is also a reflection of the null set or empty set, right? Okay. And one more sign, that is this sign. This sign is what? Subset. Yes. And what does subset means? This sign, or we can say this sign, both are said to be subsets. Yes. How do you define subset? Anyone, please? Come on, be quick. Yes, please. Yes, class. Anyone? सबसेट किसे कहते हैं बेटा? कोई एग्जाम्पल हो आपके जहन में वो बता दीजिए. राहिमा saying it means if two sets are same. देखें अगर दो सेम नहीं है राहिमा, let's say to some extent is correct, लेकिन अगर ये कंडीशन में राहिमा saying कि अगर दो सेट्स, जैसे कि चलें राहिमा की एग्जाम्पल को लिख लेते हैं हम. मैं राहिमा की स्टेटमेंट को ऐसा करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पेश करता हूँ, सामने कोट करता हूँ, फिर आप देखिएगा. अच्छा, ये तो बात तय है कि रिपीटेशन इन अ सिंगल सेट इज नॉट अलाउड. फेयर इनफ, ये तो पता है आपको.
Yes, ये sir. पता? हाँ, जी सर। इसको मैं क्या कहूँगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी कह सकता हूँ, और मैं इसको कह सकता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी कह अगर सकता हूँ। दोनों एलिमेंट्स में दो क्या कहते हैं सेम होते हैं सेट्स, एक सेम होता है तो उसको सबसेट कहते हैं। अब अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, अब इसको कैसे रीड करोगे? देखें, इसको रीड करने का तरीका ये है, अगर आप इसको रीड कर रहे हो, इसको आप कहते हो कि सर, आप कहेंगे सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर आप इसकी इसकी रीडिंग करते हैं, इसको रीड करना चाह रहे हो, तो उसको आप कहते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको कैसे रीड करेंगे, थर्ड वन को जल्दी बताइए, इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे बेटा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि देखें जहां आपके पास साइन उल्टा हुआ है ना, जी बिल्कुल, राहिमा ने आंसर दिया है, बी इज सबसेट ऑफ, एक्सीलेंट राहिमा, बहुत अच्छे जा रही हैं माशाल्लाह, गुड। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, ये तो बात है। अब आइए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ ऐसी कि जिसमें अगर तीन एलिमेंट्स इक्वल ना हो तो भी ये सबसेट क्यों कहलाता है। लेट्स से ये एग्जांपल नंबर 1 है, जो कि मैंने एग्जैक्टली राहिमा ने जैसे एग्जांपल दी चैट बॉक्स पे, वो बोल नहीं पा रही सही, तो उन्होंने राइट अप करके बता दिया कि इफ योर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड योर इफ योर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इक्वल, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग सबसेट साइन। देखो एक चीज याद रखो, आपको पता है ना कि ये लेस देन और इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस आपने सीखा था जब आप इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। अगर मैं कहता हूँ 1 इज लेस देन 3, तो आप कहते थे सर ये तो ट्रू है, और मैं आपसे पूछता था बेटा 2 इज लेस देन 4, आप कहते थे सर ये भी ट्रू है। और अगर मैं आपसे कहता था, लेट्स से अगर मैं कहूँ 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, आप कहेंगे सर ये भी ट्रू है। और 1 इज लेट्स से 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, आप कहेंगे सर ये भी ट्रू है। तो मतलब दोनों में फिर डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस यहाँ आ जाता है, देखिएगा गौर से, बड़े इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये है कि मैं कनेक्ट करना चाहूंगा इस एग्जाम्पल को सबसेट से। अब देखें कितना स्मार्टली मैं आपको कनेक्टिविटी बताता हूँ, और आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें सबसेट को समझने के क्या तरीकेकार है। लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ 3 इज लेस देन 3, तो क्या ये मेरे पास ट्रू हो गया, फॉल्स होगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? जी बोलें। फॉल्स। फॉल्स होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे होगा ये ट्रू। वजह यह है कि यहाँ पे आपके पास ओनली यू हैव सिंगल ऑप्शन, आपके पास यहाँ पे ओनली यू हैव सिंगल ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है आप बताओ ना, खुद ही बताओ। आपके पास ओनली एक ही ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन यू हैव। अब आप खुद बताएं, आपके पास एक ही ऑप्शन है ये लेस देन का, तो जब एक ही ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है, तो आपके पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पे बेटा? जल्दी बताओ कितने ऑप्शन नजर आ रहे हैं? टू ऑप्शंस। टू ऑप्शन सर। टू ऑप्शंस कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। लेस देन एंड और इक्वल्स टू। और एंड नहीं, और टू ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो अगर वो लेस देन को फुलफिल कर रही कंडीशन तो भी ट्रू है, और अगर वो इक्वल्स टू को फुलफिल कर रही है तो भी ट्रू है। तो देख लिया आपने कि लेस देन और इक्वल्स टू साइन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो जब इक्वल्स टू आता है तो उसका मतलब 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और अगर मैं इसी तरीके से हम आगे जब एक क्वेश्चंस करने जाएंगे, तो ये बेसिक्स जो है ना, ये मैं आपको उसकी बहुत बेसिक आपको टेक्निक बता रहा हूँ। अब आते हैं सबसेट को समझने के लिए। देखिए वजह ये बनी, ये भी ट्रू है इस कंडीशन के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है वाकई, क्योंकि ये आपको पता है कि ये सबसेट। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ सबसेट की, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2।
बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैं लिख रहा हूँ, मेक श्योर कि आपके स्क्रीन पे बिल्कुल विजिबल है, फॉन्ट साइज बिल्कुल विजिबल है आपको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, आपसे थोड़ा सी दरख्वास्त ये है, रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली मुझे बर वक्त रिस्पॉन्स दें अनम्यूट करके ना, ताकि फिर मुझे अंदाजा हो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपके एंड पे तो मैं नहीं मौजूद हूँ, तो मैं तो यहाँ पे होस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि हो सकता है डिस्टॉर्शन वगैरह के इश्यूज हों, क्या हों, तो बर वक्त बताइएगा। वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगवा दिया है इसको। अच्छा देखें, 1 2 3 लेट्स से। अब मैं इसको, ये बताओ, आप खुद बताओ कि मैं इसको ए इज सबसेट ऑफ बी कह सकता हूँ? Yes, sir. क्योंकि इसको इस वजह से कहा जाता है, मैं ए सबसेट ऑफ बी, तो मैं सेट लैंग्वेज की नोट फॉर्म में या सेट लैंग्वेज में मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A is the element of set A is the element of set B। क्या ये बात नजर आ रही है जो स्टेटमेंट मैंने लिखी? वाकई ये बात है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए नहीं, तो इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे मैं लिख तो रहा हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन यहाँ पे वो प्रूव ही नहीं हो रही। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मैं गोया कहना चाह रहा हूँ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन यहाँ पे तो एग्जाम्पल में तो ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें 4 कहाँ मौजूद है बी में, तो लिहाजा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर आप गौर से देखें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मेरा आपको सवाल है, इसको रीड करने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है, कि गोया कि मैं कहना चाह रहा हूँ एवरी एलिमेंट इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, लेकिन अपेरेंटली इट लुक्स के 4 इज मिसिंग। तो यहाँ पे मैं आपसे अगर ऑप्शन पूछूं कि क्या आप इस स्टेटमेंट को ट्रू कहेंगी या फॉल्स कहेंगी, जल्दी बताइए। False. फॉल्स कहेंगी, ठीक है। हाँ, अब ये बताइए कि इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिखा है ना, तो आप में से कोई बता सकता है कि इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या हो सकती है? व्हाट वुड बी द ट्रू स्टेटमेंट कीपिंग इन व्यू दीज B बोथ? is a subset of A. बिल्कुल सही कहा आपने, माशाअल्लाह। ये कौन था? बी इज अ सबसेट ऑफ Yusra Khalid, sir. युसरा खालिद जी, बिल्कुल सही है। तो युसरा खालिद, अब ये भी बता दो बेटा आप कि आपने बी इज अ सबसेट ऑफ ए कहा, जो कि वाकई में ट्रू फॉल्स में से ट्रू ही होगा, क्योंकि गोया के आप इसको रीड क्या करेंगी, गोया के आप इसको रीड क्या करेंगी, जल्दी बताओ। जैसे कि मैंने ऊपर B स्टेटमेंट is a लिखा। subset of A. Read करेंगे sir. अच्छा, अरे नहीं, every element of set B is the element of set A. जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा। तो इसको हम गोया के ये रीड कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ। देखिए मैंने कितना स्मार्ट काम किया, कॉपी पेस्ट किया। अब ये देखिए, और ये आपके सामने बी लिख दिया यहाँ पे। ये एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट, यहाँ पे क्या आएगा, A. जल्दी बोलो। ए आएगा। A and आप, then B. हाँ, देखिए आप में से ये सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, कि ये जो सबसेट के कॉन्सेप्ट में सी लिख के जो नीचे डैश आ रहा है ना, ये बेसिकली इक्वल्स टू साइन है ये। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया बिल्कुल आपको। इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जो सबसेट की कैटेगरी होती है ना, उसमें एक और भी कॉन्सेप्ट आता है, लिस्ट द पॉसिबल सबसेट्स। अगर आपको पता है लिस्ट द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको याद हो, याद आ रहा है कि आपने पढ़ा था
क्योंकि लेसन तो कंप्लीट हो चुका है, क्लासेस के अंदर ही तो सॉर्ट ऑफ रिवीजन और अपना रिकैप चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें एक और ऑप्शन आता था, सवाल आता था, जिसमें ये पूछा जाता कि लिस्ट द एलिमेंट्स, लिस्ट द पॉसिबल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको याद हो। उसमें हम क्या करते थे जी, किसी को याद है? What do we do in such type of questions? List the possible subset of the following. अगर लेट्स से अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, लेट्स से क्वेश्चन है सेट ए कंटेन ए, या चलो 1 और 2, और मैं आपसे सवाल करता हूँ लिस्ट द पॉसिबल सबसेट्स। आप मुझे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा, कैसे करेंगे इसको बेटा? पॉसिबल सबसेट्स, जी जी बेटा बताएं कैसे होगा ये। हाउ डू वी सॉल्व दिस? एनीवन, जल्दी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बोले कैसे होगा। एनीवन? देखें फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे बेटा आप, आपको बताया गया था कि जब कभी भी लिस्टिंग की बात हो रही हो, लिस्ट द पॉसिबल सबसेट्स की बात हो रही हो, तो उसमें सबसे पहले जो है वो नल सेट से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि एवरी नल सेट, देखें एवरी सेट कंटेंट्स नल सेट, लेकिन वो विजिबल नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे कि आप अगर कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि मैं 2 लिखता हूं, तो अगर मैं कहूं 2 इज नथिंग बट वी कैन से +2, प्लस साइन इज ऑलवेज देयर विद 2 बिकॉज देयर इज नो साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन। और अगर हम मजीद इसको माइक्रो लेवल पे देखें, अगर इसको देखें मजीद मैथमेटिकली, इसको जो इसकी चीजें हिडन प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या क्या आ सकता है सामने? 2.0, 2 इज नथिंग बट 2.0, ट्रू और फॉल्स? True, sir. ठीक है। तो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर सेट के अंदर भी एक ये एट्रीब्यूट है सेट लैंग्वेज और नोटेशन के अंदर, जब कभी भी कोई एलिमेंट्स होते हैं साथ में, तो उसमें जो है ना नल सेट ये रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, लेकिन वो होता है वक्त के साथ साथ। कभी जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको विजिबल कर देते हैं। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह के अंदर पढ़ना जाते हैं, जब स्टैंडर्ड फॉर्म को, ऑर्डिनरी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम अपने डेसिमल को विजिबल कर लेते हैं, और कभी कभार हम प्लस साइन को भी विजिबल कर देते हैं एज पर आवर नीड। तो इसी तरीके से यहाँ पे नल सेट इज द नल सेट इज द पार्ट ऑफ एवरी सेट। ठीक है जी। अच्छा अब देखें सबसेट ऑफ द फॉलोइंग का कहा है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे एक तो आपके पास एलिमेंट्स 2 हैं, तो इंडिविजुअली स्टार्ट लेंगे। ठीक है, आमना ने तो रिस्पॉन्स भी दे दिया भाई, माशाल्लाह, वेल डन आमना, आप तो वॉइस ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ भी बन गई। तो अब 2 के एलिमेंट्स बना दिए, ठीक है। और इसको क्रॉस चेक करने का तरीका के कार क्या है कि कैसे पता लगेगा कि आपने ये जो पॉसिबल सबसेट्स निकाले हैं वो सही निकाले? तो उसका एक रूल है कि उसका एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर n का मतलब n जितने आइटम्स होंगे ना, n कितने आइटम्स हैं सेट ए के अंदर? 2 एलिमेंट्स हैं। वी नो दैट वी हैव 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए के, बताओ जल्दी देख के बताओ। 2 एलिमेंट्स है ना? तो मैं n की जगह पे Yes, sir. तो मैं n की जगह पे 2 पुट कर लूंगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 हमेशा 4 होती है। पता पड़ा कि मेरे पास कितने सेट हैं, देखो 1 2 3 4, ये देखो क्रॉस चेक भी हो गया। प्रॉब्लम ये आता है जब आपके पास को 4 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें फिर बच्चा प्रॉब्लम करता है, पेयर पेयर बनाने में प्रॉब्लम करता है। देखें जैसे कि अगर मैं कहता हूँ सेट p इज इक्वल्स टू, लेट्स से set p is equals to, अब देखें set p is equals to a b c d। जी अब मुझे बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या काम करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, शाबाश। ये कुछ बेसिक्स हैं कवर First करने of के all, बाद। null set, right? फर्स्ट ऑफ ऑल नल सेट आएगा, एक्सीलेंट, ठीक है। उसके बाद आप इंडिविजुअल बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहले
आप ए बनाएंगे, एक मिनट, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले ए, ठीक है जी, ये बी, ये सी, ये डी, फिर दो के पेयर्स बनेंगे मेरे पास, ए बी, जी। अब आगे बढ़ेंगे हम, शाबाश। उसके बाद क्या बनेगा, ए बी के बाद ये दो दो के पेयर्स बनते जाएंगे, ठीक है CD, जी जी बिल्कुल, एक मिनट, एक मिनट। ये देखें आपके पास एलिमेंट्स जो है ना बनना शुरू होंगे, ये देखें, ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब ये सारे एलिमेंट्स जो बनना शुरू होंगे ना, इसमें हम ये तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको ये यहाँ पे ये मेंशन कर दिया हमने, ठीक है जी। कुछ यहाँ पे हमने ऐसे कर दिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अच्छा अब देखें, अब मुझे बताते जाएं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने सेट्स बना दिए। ए बी के बाद बताएं जल्दी से, ए सी, AC, CD, ए सी के AD, बाद पूरा एक फ्रेम तो पूरा करो बेटा, ए का फ्रेम पूरा करो, ए डी मैक्सिमम, फिर बी का फ्रेम पूरा करो, BC, बी सी, BD, बी BD, डी, ठीक है, बी का फ्रेम पूरा किया, शाबाश। आगे बोलो CD, जल्दी से, सी डी, ठीक है, और बोलो, और क्या है DA, जल्दी, डी ए। अच्छा डी ए और ए डी में क्या फर्क है ये बताओ। सर नहीं होगा DA, सॉरी। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, और बताओ जल्दी जल्दी, गेम है ना ये, देखें जल्दी, ये ABC, तो गेम है। एबीसी, अच्छा मतलब दो के खत्म ही कर दिया आपने, सीडी के बाद आपने दो के खत्म कर दिया, इसका मतलब कोई और नहीं नजर आया आपको, देख लें, तीन पे जा रहे हैं फिर, क्या कह रहे हैं, DB, डीबी, डीबी अगर देखें तो बीडी मौजूद है, लेकिन सर इट्स ऑलरेडी देयर DB, D का ऑलरेडी हो चुका है सारा। ठीक है, इसका मतलब हम थ्री पे आ रहे हैं, फिर हम देखेंगे अगर रिमेनिंग हो गया तो देख लेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं ए बी सी से, ए बी सी, ए का फ्रेम पूरा कर रहा हूं मैं, ए बी डी, BCD, ए बी डी, और फिर जाहिर सी बात है बी सी डी से स्टार्ट लेंगे, बी सी ACD, डी, और फिर ए सी डी, हाँ बिल्कुल सही कहा, ए के फ्रेम में ए सी डी भी रहता था, बिल्कुल सही कहा, ए सी डी, वेल शॉट, ग्रेट शॉट भाई, ए सी डी का बिल्कुल अच्छा छक्का मारा आपने, बी सी डी, और इसके अलावा बताओ, BDA, बी डी ए मौजूद है ना, ए बी डी के अंदर, ए बी डी के अंदर वही फ्रेमिंग आ गई ना उसकी, बी डी ए है ना, बी डी ए और ए बी डी तो बात एक ही है ना, जल्दी बोल, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. BCA, BCA, बी सी ए, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, बी सी ए है, शाबाश, ये बी सी ए निकाल दिया उन्होंने, जबरदस्त, और बोलो शाबाश, और बताओ, शाबाश 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 जी। शेजा जल्दी बोलो क्या कर रही हैं आप, बी सी ए के अलावा, सर हो गए सारे शेयर। सारे हो गए। चलो हम फिर हमने क्रॉस चेक जैसे आपको बताया था, वो वही क्रॉस चेक है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब ये नहीं है 8, कौन कहता है कि 2 की पावर 4 8 होता है, कौन कहता है मुझे बताओ, जो कहता है वो गलत कहता है। उसकी वजह यह है कि 2 की पावर जज्बात से नहीं निकली जाती है, 2 की पावर दिमाग से निकली जाती है। 2 की पावर का मतलब 4 का मतलब यह है कि 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, तो हो गए 16 पेयर।
16 पेयर्स आपके पास होने चाहिए। आए जरा काउंट करते हैं हम, 16 पेयर्स है ही नहीं है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जी, एक रह गया। एक मुझे तो पता है वो कौन सा है, लेकिन आप में से कोई रिवील करे तो मान जाऊं। जी बेटा, कौन बताएगा? एक रह गया, एक। Sir, the null set? नल सेट। जी नल सेट होगा, बिल्कुल होगा नल सेट। अगर नल सेट है तो उसके बाद भी एक रहता है, फिर इसका मतलब ये हमने नल सेट नहीं यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, ये नल सेट। ठीक है, अगर नल सेट हम इंक्लूड करते हैं तो उस समेत कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 10 11 12 13 14 15 16। लेकिन हमारे पास इसका मतलब एक जो है ऐसा एलिमेंट यहाँ पे है जो रिपीटेशन हो रही है, कोई रिपीट हो रहा है, वो आप फाइंड आउट करें वो क्या है। ये हमने क्या लिखा है? BCA। जी, ये देखिए, ये भी ABC देखिए और इसको देखिए, क्या ये रिपीट हो रहा है? Yes, sir. अच्छा, देखें, अगर आपके पास ये पैरामीटर नहीं होता, मुझे खुद बताइए, केस स्टडी स्टूडेंट भी करता होगा, तो ये अच्छी बात है कि केस स्टडी हमारे पास वर्किंग के अंदर सामने आ गई। तो इसका मतलब जो रिपीटेशन हुआ हुआ एलिमेंट है वो दिस इज रियली identified with the help of the formula. You can eliminate either one, this one or that one. So that means one more is left. That means one more is left. Now which one is left? जी कौन बताएगा? बेटा, जब एक का पेयर बन गया, एक का हो गया, एक इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया, 2 के पेयर्स बन गए, 3 के बन गए, तो बेटा 4 का तो पेयर बनेगा, 4 का तो एक ही बनेगा जो कि ABCD है। भूल गए आप? ऐसे ही है ना? यस और नो? Yes, sir. हाँ, समझ में आ गई? तो हो गए Yes, 16। sir. हो गए 16। Yes, sir. हो गए 16. हाँ जी, अब बस अब ये चीज हो गई। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूं। सेट लैंग्वेज और नोटेशन के अंदर आपको बाज औकात ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम थोड़ा सा पास पेपर की तरफ आ रहे हैं। बेसिक्स में मैंने आपको क्लियर कर दी हैं चीजें, क्योंकि जब वेन डायग्राम और एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वेन डायग्राम्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनिशियली उसकी भी बेसिक से स्टार्ट लेके एक उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे भी आएंगे जिस पे स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात प्रॉब्लम करते हैं और कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। और कुछ क्यूरीज थी जो आपने मुझे लिखवाई थी, उसके हवाले से भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस वक्त ये बिल्कुल आप देखिएगा कि मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ पास पेपर का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं। उस पास पेपर के क्वेश्चन पे आपसे पूछा क्वेश्चन किस तरीके का जाता है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपसे सवाल किया जा रहा है कि अगर यूनिवर्सल सेट, लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूँ यूनिवर्सल सेट में, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने, ये देखिएगा, ये पास पेपर का क्वेश्चन ही एक आपको करवाने जा रहा हूँ। जरा फोकस कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सल सेट, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल सेट कहते किसे हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये मैंने 3 डॉट लगा के 15 लिख दिया। 3 डॉट लगाने का मकसद क्या है, कौन बताएगा? Sir, इसका मतलब है कि To know that the numbers continue. तक numbers The numbers continue till 15. जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ जी, क्या लिख रहा हूँ, जल्दी बोलो बेटा। descriptive form है। जी, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सेट में किस अंदाज में लिख रहा हूँ? इस सेट को कौन सी टाइप ऑफ फॉर्म कहेंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ सेट कहेंगे? इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म ऑफ सेट कहेंगे, जल्दी बताओ। शाबाश। क्योंकि मुझे याद है कि क्यूरी जब मैं पूछ रहा था तो क्यूरी में एक बच्ची ने कहा था कि सर मुझे प्रॉब्लम है इसको सेट बिल्डर फॉर्म, और पता नहीं इस तरीके से कुछ सवाल किया था आपने, किसी एक स्टूडेंट ने कहा था।
बेटा ये आपको जो एक्स सच दैट एक्स है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, ये सेट बिल्डर की। सेट बिल्डर की रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है दिया जा रहा है सामने। कोशिश करो कि जब कभी भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो ना सेट, कभी भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो तो उसको सबसे पहले लिस्टेड फॉर्म में कर दो उसको। लिस्टिंग का अंदाज जो है ना, लिस्टेड फॉर्म का अंदाज वो यही है कि आप कन्वर्ट करेंगे इस सेट को लिस्टिंग के अंदर। तो कैसे करेंगे, ये बड़े मोहतात अंदाज में किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एरर करता है बच्चा, वो देखता नहीं है कि ऐसी चीज में लिस्टिंग कर रहा हूँ जो कि मुझे पता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर भी मौजूद होना। देखो यूनिवर्सल सेट इज द मतलब इज अ किंग ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब यूनिवर्स में एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो सेट का पार्ट कैसे बन सकती है। स्टूडेंट यहाँ पे ही ब्लंडर करता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लंडर करता है। अच्छा मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल, जैसे कि ये सवाल पूछा गया आपसे, कहा गया कि सर फाइंड एल इंटरसेक्शन एम, ठीक है सर ये जो सर जी। ये कौन सा? अगर लिखा हुआ है कि जो है इज अ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल 3, तो सर ये 1 और 2 कैसे मल्टीपल हुआ 3 का? देखें, आपको आपको ये मल्टीपल ऑफ 3 यूनिवर्सल सेट में कह रहा है या एम सेट कह रहा है? एम सेट कहता है कि मैं वो सेट हूं जो मेरे सेट के अंदर सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। एल सेट कहता है गोया के मैं वो सेट हूं कि मैं ऑड नंबर्स के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और यूनिवर्सल से कहता है हु हा मैं वो सेट हूं, मैं यूनिवर्सल सेट हूं, मैं सारे सेट को जो है ना सेट करना जानता हूँ। तो बेटा ये समझो अच्छे से कि जो आप बता रही हो, आप जो कह रही हो मल्टीपल ऑफ 3, वो तो एम सेट का जो है ना कहना है। वो तो यूनिवर्सल सेट, तो वो एम सेट कोई दावा थोड़ी कर रहा है, यूनिवर्सल सेट दावा थोड़ी कर रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3। दावा कौन कर रहा है? एम सेट कर रहा है, कह रहा है मैं वो सेट हूँ जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। एल सेट दावा कर रहा है मैं वो सेट हूँ कि मेरे पास ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। हाँ यूनिवर्सल में तो जो लिस्टिंग दी हुई है, जो हद दी हुई है, जो रेंज दी हुई है, वो रेंज आपके सामने है। Am I clear, ईशा? यस सर। अब जरा देखें, अब मैंने आपसे सबसे पहले ट्रिक जो बताई थी, अभी शेयर की थी, वो की क्या थी कि आप एल को कन्वर्ट करें लिस्टेड फॉर्म में। जब एल को लिस्टेड फॉर्म में करेंगे, जल्दी से कौन बताएगा बेटा, जल्दी जल्दी शाबाश। अब थोड़ा सा मैं स्पीड हो पकड़ूंगा क्योंकि मैंने आगे भी जाना होगा, आगे चीजों को डिस्कस करना है जी। जल्दी से बताइए एल के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, शाबाश। एल के एलिमेंट्स बताइए। 1 3 5 7 9 1 3 5 7, क्या बात है, ये कौन था भाई, कौन था ये? सुमैया सुमैया, माशाल्लाह सुमैया, बहुत जबरदस्त आपने आंसर दिया है 11 मुझे। 13 15 हाँ जी, मैंने डॉट डॉट लिख दिया, पैटर्न तो एक ऑड नंबर्स का था तो फिर मैंने लिखना जो है मुनासिब नहीं समझा, तो पैटर्न तो एक ही है। अच्छा डॉट डॉट भी जब लगाया जाता है, लेकिन डॉट्स जब लगाए जाते हैं सेट के दरमियान में, जब पैटर्न एक जैसा हो, ठीक है, पैटर्न एक जैसा हो। पैटर्न अगर चेंज हो रहा हो हर 2 नंबर 3 नंबर के बाद या हर 1 नंबर के बाद, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट कॉमन मतलब कॉमन चेंज नहीं आ रहा हो, कॉमन डिफरेंस ना हो, जिस जिस सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस ना हो वो मेंशन कर दी जाती है सीक्वेंस। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है जी। अब आप आगे बढ़ते हैं, मुझे बताएं कि एम को कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलो, शाबाश। ये राहिमा बेग ने तो माशाल्लाह ये क्वेश्चन ही करके दिखा दिया। चलो हाँ, एम सेट में बताओ जल्दी से, टाइम कम है। ईशा? Sir, 3, 6, 9, 12. 3 6 9 12 15। ये बताओ, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि लिखने ही मेरे 5 थे मेंबर्स, अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं तो डॉट डॉट लगा दो, ठीक है जी। अब मुझे बताओ एल इंटरसेक्शन एम, जो मैंने आपको कॉमन बताया था ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था मैंने आपको बताया था, याद है? वो क्या बताया था मैंने, याद है ना? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन बिटवीन 2 सेट्स। तो इंटरसेक्शन में 3 मिलेगा, 9 मिलेगा और क्या मिलेगा, 15। 3 9 15
जी बिल्कुल सही कहा। आप में से जिसका आंसर 3915 आ रहा है वो 100% करेक्ट है। ठीक है जी, ये आपका आ गया L इंटरसेक्शन M। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। सबको समझ में आ रहा है बेटा? फेयर Yes, इनफ? sir. Clear. Yes, sir. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम जा रहे हैं आगे, आगे बढ़ने बेटा। हमें नेक्स्ट पूछा ये क्या गया था कि आपसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट आपसे पूछता हूँ कि L कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M, L कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M, L कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M। तो देखो L कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कहोगे, देखो कॉम्प्लीमेंट को रिजॉल्व करोगे आप। सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट को रिजॉल्व करो। जब आप कॉम्प्लीमेंट को रिजॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आता है, बताओ जल्दी बताओ। हाउ डू यू रिजॉल्व कॉम्प्लीमेंट बेटा, जल्दी बताओ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस, याद आ रहा है क्या बताया था मैंने? Universal minus L. यस, यूनिवर्सल माइनस एल, मतलब एल के सेट सब्ट्रैक्ट होंगे यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, जब एल के सेट सब्ट्रैक्ट कर लोगे यूनिवर्सल सेट से, तो मुझे बताओ एल कॉम्प्लीमेंट बाकी क्या बचेगा? शाबाश, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे बेटा, बताओ जल्दी जल्दी बोलो। 2 4, जी जी बोले। सर ये जो आपने इंटरसेक्शन एम किया है दोबारा समझा देंगे कि आपने क्यों किया है? आप रिपीट करें बेटा, क्या आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर मैं पूछ रही हूँ ये जो आपने इंटरसेक्शन किया है एल और एम का, ये मतलब दोबारा समझा देंगे? इसमें क्या चीज बेटा कॉमन बिटवीन टू सेट्स है ना, एल और एम के दरमियान में कॉमन क्या है? तो आप ये बता दीजिए, क्या 3 कॉमन आ रहा है? रमशा गौर से देखो, क्या 3 कॉमन आ रहा है यस दोनों में? सर आ रहा है। हमने लिख दिया 3। इसी तरीके से 15 नजर आ रहा है आपको? यस आ गया सर। ना? अच्छा, इसी तरीके से 6 नजर आ रहा है? 6 कहीं इसी रेंज में है, 5 के बाद 6 है जो कि मैंने लिखा नहीं है। ऐसे ही 1 3 5। अब यहाँ पे यस देखें, सर। 9, सॉरी 6 नहीं 9, 1 3 5 7 9। यहाँ पे डॉट्स और लगाने का मकसद ये नहीं था कि वो गायब भी हो गया, ये मौजूद है अंदर ना, इस सीक्वेंस में पैटर्न में मौजूद है। तो बेटा 1 3, सॉरी 3 9 और 15, 3 9 और 15 तीनों चीजें कॉमन है दो सेट्स में, हमने लिख दिया, मेंशन कर दिए। फेयर इनफ? यस सर। ठीक है, अब एल कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो एल कॉम्प्लीमेंट बताइए जल्दी से। शाबाश। 2, 2 4, 4। 6, 8, 10, 12, 14. I guess. अच्छा, बिल्कुल सही कहा। अब जब ये एल कॉम्प्लीमेंट निकल गया, तो आपके पास एम तो वैसे ही मौजूद था, एम तो मौजूद है ना। अब आप इस एम को, जो 3 6 9 12 15 है, ये तो हमारे पास पहले ही मौजूद है। अब इन दोनों के दरमियान में आप इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इंटरसेक्शन। रमशा बताएंगे हमें। रमशा यस सर। बेटा मुझे बताओ कि एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम, बेटा इसमें आंसर क्या आना चाहिए हमारा? एल कॉम्प्लीमेंट सर इंटरसेक्शन एम। 6। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही, और 12। ठीक है, ये आपके पास 6 आ गया, ये आपके पास 12 आ गया, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम जो आएगा वो 6 और 12 आएगा। किस किस को बात समझ में आ गई है मेरी बेटा? सबको आ गई? यस सर। ठीक है, ये तो था एक बहुत कम सतह का जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, और आपने इजीली इसको आंसर कर दिया, और सबसे पहले टेक्निक्स इसको अंडरस्टैंड कर दी। टेक्निक्स में ये था कि सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है सेट्स को एलिमेंट्स की सूरत में। वंस आप एलिमेंट्स की सूरत में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो आपके लिए फिर आसान हो जाता है बाकी चीजों को फाइंड करने के हवाले से। और इसमें ज्यादा में ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट करता है कि ये तो अभी आपके पास
सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव कॉम्बिनेशन में दिया हुआ ना। अब बाज औकात ये लोग जो है ना ऐसे कॉम्बिनेशन देते हैं कि जिसमें ये होता है कि इनइक्वालिटीज होती हैं, कि मुझे पता है कि किसी ने इनइक्वालिटी का भी तस्करा किया था जब हम आपसे पूछ रहे थे, जब मैं आपसे पूछ रहा था कि किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम किस किस में आ रहा है। तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर वो इनइक्वालिटी का पार्ट भी इसमें जब ऐसी चीजें आती हैं तो इनइक्वालिटी में जो है वो हमें समझने में प्रॉब्लम होता है। आई गेस कौन था यहाँ पे हमारे साथ हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने कहा था? यस सर। जी जी, आप बताएंगे बेटा क्या आपका प्रॉब्लम क्या था इसके अंदर बेसिकली? नहीं सर, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं था, वो पास पेपर क्वेश्चन वो उन्होंने इतना कंफ्यूजिंग बनाया हुआ था तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप देखें, अब लेट से मैं चलें, ये तो हो गया। हम पास पेपर का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद वेन डायग्राम के क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। शेडिंग का करेंगे, फिर देखें ये मेजर एरिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें से किसी को सवाल तो नहीं है, क्योंकि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ तो मैं जानना चाहूंगा आप में से किसी को कोई क्वेश्चन करना हो यहाँ तक के पार्ट में से तो आप कर सकते हैं, जल्दी बताएं। No, एनी sir. क्वेश्चन? Clear, all clear. No, ऑल sir, क्लियर? all clear. ठीक है ओके। ओके बेटा, अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, एक मिनट जरा मुझे टाइम दीजिए। जी बेटा, स्क्रीन विजिबल है आपको बेटा? यस सर। ठीक है ठीक है बेटा। एक मिनट में आपको जो है ना पास पेपर के क्वेश्चंस, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं पास पेपर के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ना, एक मिनट। जब तक आप एक काम करें, 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, 5 मिनट का, ठीक है? आप जब तक पानी वगैरह पी लीजिए, जूस वगैरह पी लीजिए, ठीक है? और मैं आप ऑनलाइन ही रहिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ और पास पेपर के डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है? इसी से रिलेटेड जहाँ पे मैंने एंड किया है। ओके, एम आई क्लियर टू यू? यस सर।
अच्छा जी क्लास, आप हमारे साथ हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, विजिबल है बेटा? जी सर। क्वेश्चन Yes, sir. विजिबल है? ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ना मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाता है। अब इसको पहले समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपसे पूछा क्या गया है। यूनिवर्सल सेट गिवन है आपके पास, ये देखें, ये ऐसे है। आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा? क्लियरली नजर आ रहा है? ब्लड तो नहीं है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं। नहीं sir, clear है. ये इज इक्वल्स टू है, मैं इसको जरा वाजे कर देता हूँ। ये x इज टू है ना, ये x सच दैट x, जैसे मैं लिख रहा था ना x सच दैट x, ये वो है। ठीक है जी, ये x सच दैट x इज इक्वल टू 0 1 2। अच्छा अब आप देखें, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ p इंटरसेक्शन q। आप देखें x के मेंबर्स कौन कौन से, 0 1 2, और y के मेंबर्स 0 एंड 2। ठीक है, आप में से कौन बताएगा कि व्हाट इज द आंसर फॉर ए पार्ट? ए पार्ट आपके हिसाब से ए पार्ट का आंसर क्या है बेटा? जी आप में से कोई भी बता दो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर फॉर आंसर ऑफ ए पार्ट? जी बेटा। P यस, intersection Q is equal to 0, 2. बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने कहा, आपने देखा कि स्टाइल यहाँ पे क्या दिया हुआ था, स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ था x such that x and x such that x is equals to 0 1 2। बेसिकली वो ये बात वही हो रही है। अगर मैं इसको सिंपली लिस्टेड फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास गोया के ये लिखा हुआ है कि भाई सीधा सीधी बात है कि जीरो के सॉरी पी के मेंबर्स कौन कौन से, जल्दी बताओ। 0 1 और 2। फेयर इनफ? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ लुक इनटू द क्यू। क्यू के मेंबर्स कौन कौन से, इसी तरीके से जल्दी बताएं। इसको हम लिस्टेड फॉर्म में करते हैं तो क्या करेंगे बताएं, क्या लिखेंगे? 0 and 2. ठीक है, अब आप देखें कि पी इंटरसेक्शन क्यू निकालने बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आपने रिस्पांस दिया पी इंटरसेक्शन क्यू, और ये आपके पास आंसर आ गया 0 और 2। ठीक है, और आप देखें ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको कॉम्प्रीहेंड करना आ जाए तो आप देखें आपके समझ लीजिए कि मुफ्त के मार्क्स हैं, ये 1 मार्क मिल गया आपको। अच्छा इसी तरीके से कहा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करने का तरीका ये होता है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू। क्या पढ़ेंगे इसको? फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन जो है ना छोटा एन, देखो ये लिखा हुआ ना एन, छोटा वाला एन लिखा हुआ है, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू। ये पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू जब निकलेगा जब आप इसको सेट के फॉर्म में रिजॉल्व ना कर दोगे। हमें क्या पता कि अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। पी कॉम्प्लीमेंट जल्दी बताओ, शाबाश, बताओ पी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 3 3 4 5 6. 5 6, शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरीके से क्यू क्या आ रहा है? क्यू तो आपको पता है 0 2 आ रहा है, जो आपने 0 पहले ही 2. लिस्टेड किया हुआ है। अब आपसे सवाल क्या किया इसने, इसने कहा कि इन दोनों में यूनिटी, जब इन दोनों में यूनिटी कर देते हो आप, यूनियन कर देते तो, जब आप यूनियन करते हो तो आपके So it पास will be आंसर all क्या होता है? numbers, right? यस, इट विल बी ऑल मेंबर्स ऑफ Except पी 1. कॉम्प्लीमेंट, ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू। तो लिहाजा आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से, 2 3 4 5 6। ये बताओ कि बेटा कितने मेंबर्स काउंट करने में आ रहे हैं आपको? शाबाश, बताओ जल्दी से। 6 members. तो बेटा इसका आंसर होगा सिंपली इज इक्वल्स टू 6। और ये भी देखें 1 मार्क,
का है, आपने CI में 1 मार्क एक और ले लिया। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? क्लियर हो रहा है? यस सर। अब आप देखें, देखने में ऐसा आता है कि जैसे पता नहीं कोई नई चीज है, लेकिन सिर्फ कॉम्प्रीहेंड करना आ जाए तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है। समझ अब आप में इसको, नहीं आया अच्छा जी, किसको समझ नहीं आया बेटा? सर मुझे। मुझे का रमशा। नाम पता है? रमशा। रमशा बेटा आप ये बताइए क्या समझ नहीं आया इसमें? शाबाश। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, एक तो पहले फर्स्ट पार्ट में आपने फर्स्ट पार्ट समझ आ गया मुझे, क्या आप ओ और मतलब 0 2 कैसे आ गया, सेट पी कॉमन क्यू कैसे निकल आया, बट सर ये जो आपने सेकंड पार्ट कराया ये समझ में नहीं आया मुझे। सेकंड पार्ट में मैंने सबसे पहले, मुझे बताओ, पी कॉम्प्लीमेंट निकाला, जहां पे मैंने एरो यस लगाया, सर। ये समझ में आ गया आपको ये वाला? सर कॉम्प्लीमेंट तो समझ आ गया कैसे निकालना था। अच्छा, फिर अगर आपको पी कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया तो ये क्यू जो है, ये क्यू तो एज इट इज लिखा हुआ था यहाँ पे, जो कि हमने लिस्टेड फॉर्म में लिखा था ऑलरेडी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हमने वैसे ही लिख दिया ताकि फिर हमें पता लगे कि इन दोनों के दरमियान में करना क्या है। इन दोनों के दरमियान में यूनिटी का कहा था, तो यूनिटी जब हम इन दोनों के दरमियान में कर दी हमने, तो पता ये लगाना था कि ये छोटा एन, ये छोटा एन का मतलब मैंने पहले ही बताया बेटा, इस सेट लैंग्वेज और नोटेशन में छोटे एन का मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी टोटल जब आप फिल फोर्ड निकाल लेते हो ना, सारे सेट्स आखिर में निकाल लेते हो, फिर आप गिनती में मतलब आप काउंटिंग में बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बच जाते हैं, मतलब कितने हैं उस पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो ये रिफ्लेक्शन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, छोटा एन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बात क्लियर हो रही है रमशा? सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, सर पी में हमने 1 क्यों नहीं लिखा। ठीक है, आपको पता है कि मैंने क्या किया, ये पी कॉम्प्लीमेंट में वैसे मैंने पी कॉम्प्लीमेंट निकाला कैसे है, ये जरा बता दीजिए बेटा, पी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला मैंने? सर समझ आ गया आपने पी की जो एलिमेंट्स थे 0 1 2 उसको जो कॉमन एलिमेंट्स थे उसमें से जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे ना उनको हमने नोट डाउन। तो बेटा यही तो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ाया था, तो पी कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो बेटा यूनिवर्सल से माइनस होता है, वो सेट यूनिवर्सल से माइनस हो जाता है, यानी पी के तमाम वो एलिमेंट्स माइनस होके, जो पी के एलिमेंट्स थे 0 1 2, अब 0 1 2 इलिमिनेट अगर करते हैं, देखो 0 निकल गया और 1 निकल गया, और ये देखो ये 2 निकल गया, तो आपके पास क्या बच गया? 3 4 5 6, यही चीज मैंने लिखी है पी कॉम्प्लीमेंट में। यस और नो? रमशा मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा बहरहाल, ठीक है। अब देखें इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि ये लिखा है z इज इक्वल टू 2x। अब आप कहेंगे सर ये तो इक्वेशन ही दे दी, अब इक्वेशन दे दी तो अब कैसे सॉल्व होगा, कौन बताएगा? ठीक है, ये लिखा हुआ x बिलोंग्स टू p, x बिलोंग्स टू p, और यहाँ पे लिखा हुआ है y बिलोंग्स टू q। बिलोंग्स का मतलब इज नंबर, जो भी y है, वो जो भी आपके पास y है वो बिलोंग कर रहा है q से। अब आप देखो लिस्ट द मेंबर्स ऑफ r, ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं इसमें जी, कौन बताएगा? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं ये बताइए। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि r जो है वो हम निकालने जा रहे हैं, r निकालने से पहले ये x और y आपके पास एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपके सामने यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये समझ लो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए हमें, हमारा टारगेट क्या है, हम लिस्ट करने जा रहे हैं मेंबर्स आर को, कीपिंग इन व्यू z इज इक्वल टू 2x प्लस y। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि x जो बिलोंग करता है p से और y बिलोंग करता है q से। बेटा ये याद रखिएगा, x बिलोंग करता है किससे, जल्दी बताओ? p से, और क्या कहा उन्होंने? y बिलोंग करता है q से। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि x और y को आप कंपेयर कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो ना। अगर देखा जाए तो आप हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। अब आपके सामने ये P के मेंबर्स कौन कौन से मौजूद हैं, 0 1 2। और बेटा Q के मेंबर्स कौन कौन से मौजूद हैं, जल्दी बोलो। O and 2। 0 and 2। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। आप ऑप्शंस का आपके पास 0 0 से हो सकता है। ठीक है, आप पहले तो पॉसिबल ऑप्शंस लिखेंगे ना। आपके पास ऑप्शंस कितने हैं प्लग इन करने के वैल्यू। देखो हमेशा याद रखो, ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं उसमें जो हम लिख रहे होते हैं, ये एक्स है, ये वाई की सीरीज है। ठीक है, एक्स है, ये वाई की सीरीज है। तो अगर मैं एक्स और वाई के लिए मैं देखता हूँ इसमें से मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकल पा रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास 0 0 निकल रहा है, और बताएं 0 के बाद 0 2 भी निकल जाता है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले फेज में 0 0 और फिर दूसरे फेज में मैं लिखता हूँ 0 2। ठीक है जी, फिर मैं लिखता हूँ 1 0, कंपेयर कर रहा हूँ हाँ मैं दोनों को, और फिर मैं लिखता हूँ 1। ये पॉसिबल मेरे पास जो ऑर्डर पेयर्स निकलते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट तो बाद में करेंगे हम। और बताइए बेटा 2 0, और लास्ट क्या होगा बेटा, जल्दी बताएं जल्दी। 0 and 2। 0 2 बेटा तो हो गया ना, 2 0 2 0 2 बात तो एक है, 2 and 2 होगा ना। पहले तो मैंने चेक करेंगे मेरे पास पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। देखें पॉसिबिलिटीज मैंने नोट डाउन कर दी ना, दोनों को कंपेयर करके। हम पॉसिबिलिटीज क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम इस वजह से देख रहे हैं कि हमें इक्वेशन दी हुई है 2x + y। इक्वेशन में x और y की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, x और y आपको पता है ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं ना, x और y। आपको पता है ना ग्राफ के अंदर ये काम आते हैं। ठीक है, यस तो ये सर। हाँ, हम पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं कंपेयर करते हुए P और Q के हवाले से, और फिर हम x पता लगाते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है, z = 2x + y। अब आप मुझे बताओ, जब आप इसके अंदर प्लग इन करने जा रहे हो ये वाला पार्ट में, I'm just copying this part as it is somewhere else, कहीं और थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें। यहाँ पे स्पेस श्रिंक हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक मिनट, ये इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, और ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात मैं कर रहा था, आप पॉसिबिलिटीज आपने बना दी। अब आप 0 और 0 प्लग इन करें। जब आप 0 और 0 प्लग इन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा मुझे बताइए। जब आप 0 और 0 मतलब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 0 और 0 की। ठीक है जी, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन 0,0। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने 0 यहाँ पुट किया प्लस 0 पुट किया तो मेरे पास z क्या मिला, जल्दी बोलो। 0। 0 मिल गया, सीधी सीधी बात है। और अगर मैं 0 और 2 पुट करना जा रहा हूँ, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर 0,2, तो इक्वेशन के अंदर x की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ और y की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, और 2 पुट करूंगा तो 2, तो मेरे पास z क्या आ So जाएगा, it will be 2. Z = 2. इट वुड बी z = 2। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसी तरीके से हमने देखें आपके सामने ये वाला सॉल्व कर दिया, दिस वन इज सॉल्व, दिस वन इज सॉल्व। अब हम टारगेट कर रहे हैं दूसरे कोऑर्डिनेट को। वंस आपने जब ऑर्डर पीरियड्स बना लिए तो अब सिर्फ कुछ भी नहीं करना, जस्ट लाइक ए गेम। और ये इतना आसान हो जाता है, और सब्स्टिट्यूट करना बस जस्ट लाइक ए गेम फॉर यू। अब देखें 1,0 1,0, आप जल्दी से बताओ। 1 पुट किया तो 2 हो गया, तो 0 पुट किया तो आंसर क्या है इसका, बेटा जल्दी बताओ। 1. सर 1। बेटा 2 आना चाहिए ना आंसर। देखो ना, x की जगह पे 1 पुट किया, 2 1 2 हो गया, और +0, 2 + 0 क्या होता है, 2 होता है ना।
बेटा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये देखो आप इसकी रफ वर्क यहाँ पे सर करो। समझ गए। अरे यार ये देखो हाँ टू, सर, got it. हाँ ना, ये थोड़ा सा मेंटल मैथ्स में शार्प होना चाहिए आपको। देखो ये हो गया ना टू, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, गेटिंग, ये रफ वर्क है इसका, आप समझने के लिए, आपके लिए, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर पीरियड क्या है, 1,0, 1,0 हो गया। इसी तरीके से 1,2, 1,2 पुट कर रहे हैं, जल्दी बताओ क्या होगा। अब आपने बताना है, जल्दी बताओ, मेरे लिखने से पहले बताओ, शाबाश। मैं लिख लूं, ये सर लो। 4 4 हाँ होगा. अब हाँ जी 4 होगा। अब सर मैं देखता हूँ मेरे लिखने से पहले कौन बताता है, जल्दी बताओ। एक मिनट जी, कौन बोल रहा है, क्या कह रहे हैं, ऐसा सवाल ये करने जा रहे वाला हैं भी कोई? 4 होगा. 4 एक मिनट, कोई सवाल करने जा रहा है क्या मुझसे कोई पूछना चाह रहा है? सर कर रहे थे कोई। अच्छा चलो 4, 2,2, ये लो, ये 2,2, तो क्या हो जाएगा? 6 सर, इट विल बी 6। शाबाश, ये हुई ना बात। तो बेटा आपके पास एलिमेंट्स जो आए z के, वो कौन कौन से एलिमेंट्स आए देखें। आपके पास जो एलिमेंट्स आए, जो r जो आपको फाइंड करने का कहा था, लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ r बाय पुटिंग द ऑल थिंग्स, तो r की आपने फाइनली लिस्टिंग कर दी, वो आपके पास सामने है 0, 2, 2 4 आपके एंड सामने में 6। लिख रहा हूँ जी, ये आपके सामने आ गया 0, सर 2 जी, बोले बेटा, बोलो बेटा। सर आप ये सवाल दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी कौन है ये, कौन है ये, नाम बताइए बेटा। I'm saying कि आप ये सवाल दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं सवाल, हाँ राहिमा आप बात कर रही है ना, राहिमा आपको आवाज नहीं पहुंची थी या आपने ज्वाइन अभी किया है? नहीं सर, बीच में मैंने 5-10 मिनट के लेफ्ट किया था क्योंकि मैं डिनर कर रही थी, मैंने अभी ज्वाइन किया है, इस वजह से आपसे कह रही हूँ दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, अब ऐसा है, सुनो मेरी बात, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग में सुनना पड़ेगा क्योंकि हमने आगे जाना है, हमारी जर्नी थोड़ी सी आगे जा रही है। ये वेन डायग्राम के लिए थोड़ा सा, उसमें वेन डायग्राम की टेक्निकलिटीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप इसको रिपीट उसमें देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड उसमें लेसन में, ठीक है बेटा। ओके राहिमा, जी सर। ठीक है, आई होप यू वॉन्ट माइंड, मुझे पता है कि आप समझ पा रही हैं, हमारे पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है बेटा, ठीक है। बिल्कुल मैं आपके लेवल पे आके ग्रेजुअली बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है बेटा राहिमा, ओके जी सर ठीक है। ऑलराइट। अच्छा अब आप देखें, ये तो यहाँ पे हो गया, ये इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, ठीक है जी, ये हमने ये सी पार्ट आपको बता दिया। अच्छा अब हम वेन डायग्राम के लिए जा रहे हैं। वेन डायग्राम से पहले मैं आपको थोड़ा सा शेडेड रीजन, अपना शेडेड रीजन के कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो थोड़ा बता दूं कि बच्चा कहता है कि सर शेडेड रीजन के अंदर मुझे प्रॉब्लम होता है। शेडेड रीजन के अंदर अब आप देखें, एक तरीके का तो सवाल ये भी है जो मैंने आपको बताया, बाज औकात ये सवाल ऐसे भी आते हैं। मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ एक और क्वेश्चन इसका, पास पेपर्स का, ठीक है, वो भी चले शेडेड रीजन के हवाले से ही मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, एक मिनट। वैसे ये रिकॉर्डिंग पे है, आप में से जो नहीं है आपकी फ्रेंड्स, तो उनको इजीली जो है वो एक्सेस हो जाएगा, तो वो आराम से वो नोट डाउन करके अपने पास जो है वो नोट्स वगैरह और कॉन्सेप्ट्स को कैटर कर सकती हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये पासवर्ड का क्वेश्चन है, जिसपे ये पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। शेडेड एरिया के लिए मैंने अपनी क्लासेस में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, और मैं रिपीट करने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखिएगा कि जब कभी भी आपके पास वेन डायग्राम गिवन हो, ठीक है, जब कभी भी आपके पास वेन डायग्राम गिवन हो और आपसे कहा जा रहा हो शेड द रीजन, ठीक है,
बाज़ औक़ात शेडेड रीजन गिवन होता है, बाज़ औक़ात ये गिवन शेडेड रीजन होता है और आपको रिवील करना होता है अपना सबसेट, मतलब वो सबसेट्स जो है ना वो आपको सेट फॉर्म में रिवील करना होगा। बाज़ औक़ात ये जो है, अच्छा इसका वाइस वर्सा वर्जन होगा, अगर पूछा जाएगा ज़्यादा में ज़्यादा वाइस वर्सा होगा। इसका रूल करने का ये है, सबसे पहला काम करते हैं कि आप उस रीजन को कोड दे देते हैं। रीजन बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, 1 मिनट। अब ऐसा है कि वो मैं 1 मिनट, वो क्या था, रीजन्स के हवाले से मैंने आपको एक गाइड करनी थी चीज़। 1 मिनट, हाँ, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये रहा, ठीक है जी, आपके स्क्रीन पे सामने ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, सही है? क्या आपको ये नज़र आ गया? Sir, I'm not able to see the screen. जी सर, दिख गया। अच्छा, आप में से किस-किस को स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? I सबको आ can रही see है? it. All of you can see the screen? Yes or no? No, sir, I can't Yes, see it. sir, I can see the screen. हमेशा अगर स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो आप अपने टीम्स को रिफ्रेश कीजिएगा, इंटरनेट इशू होगा, वरना तो यहाँ पे ओके है ना, बाकी सबको विजिबल है। बहरहाल रिकॉर्डिंग उस पे देख लीजिएगा अगर कोई इशू आ रहा हो। तो देखो, जो रीजन्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कलर वाइज भी, और अपना लिख भी दिया है कि ये वेन डायग्राम्स के वर्ड प्रॉब्लम्स में भी काम आएगा। देखें, ये रीजन जो कहलाता है ना, जैसे ए बी सी, अब आप में इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, ए एंड बी, ठीक है। अब आप देखें ओनली ए, मतलब ऐसे जो स्टूडेंट्स या ऐसे प्लेयर्स जो कि इंटरेस्टेड हैं ओनली। देखो, जब ओनली का वर्ड आता है ना, ओनली का वर्ड आता है कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर में, जब आप बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा उसमें भी हाईलाइट करूंगा इन चीजों को। तो ओनली का मतलब ये होता है कि वहां पे स्पेसिफिकली कीवर्ड दिया होगा ओनली, वरना ये वो ओपनली कहेंगे कि प्लेयर्स दोज आर पार्टिसिपेटिंग हॉकी गेम, फॉर एग्जांपल हॉकी है या फुटबॉल है या कोई भी स्नूकर गेम है, किसी भी हवाले से केस स्टडी आ सकती है। तो मैं ये बताना जा रहा था कि जो रीजन्स है ना, ये स्पेसिफिकली ओनली बी, ए एंड बी जिसमें कॉमन हो, कॉमन बिटवीन ऑल 3 सेट्स, तो ए बी सी के अंदर कॉमन आ गया ब्लैक वाला जो दिया हुआ रीजन, कॉमन इन बिटवीन ए एंड सी जो ग्रीन वाला रीजन है, कॉमन बिटवीन बी एंड सी, एंड दोज आर टेकिंग पार्ट इन ओनली सी। तो ऐसे प्लेयर्स या ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसी केस स्टडी जो के पार्ट ऑफ सी है, नॉट पार्ट ऑफ बी, नॉट पार्ट ऑफ ए। तो ये सारे रीजन्स को आइडेंटिफाई करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको नो हाउ देना है मकसद। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। आपने सबसे पहला काम करना है, स्टेप नंबर 1, आपने कोड दे देना है रीजन्स को। लेट्स से मैंने 1 2 3 4, कोई भी ऑर्डर। अब आप में से कोई कहेगा सर मैं 5 रीजन ये दे दूं, मैं 5 रीजन चलें ये दे दें, 6 रीजन चलें ये दे दें, मतलब कोई भी एक रीजन दे दीजिए रैंडमली। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सीक्वेंस में, आप ABCD भी लिख सकते हैं, बेशक आप ABCD भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि वन रीजन, जो मैंने यूनिवर्सल सेट का पार्ट लिखा है, यूनिवर्सल सेट जो है आपका है, यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो कि सारे सेट्स की कॉम्बिनेशन को कहते हैं ना। तो अब देखें, पूरा एरिया के अंदर है, पूरी जमीन के अंदर से जो सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिन प्लेयर्स की, जिन एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस है वो है, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है वो यूनिवर्सल सेट के यूनिवर्स में मौजूद है लेकिन किसी सेट का पार्ट नहीं है, वो भी हम आपको मजीद वर्ड प्रॉब्लम्स में हाईलाइट कर देंगे। इस वक्त सिर्फ ज़हनशीन ये करना है कि सबसे पहले आपने कोड देना है। कोड देने के बाद आपसे ये सवाल किया गया है
कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखो, आपको पता है सेट ए के रिवील करो जरा, आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ। सेट ए के जो मेंबर्स हैं ना, ये देखें, सेट ए के मेंबर्स नजर आ रहे हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। क्या सेट ए के मेंबर्स आप में से कोई बता सकता है क्या क्या हैं? जो कि मैंने सर्किल किया वो मुझे बता दो, क्या 2, सर्किल 3, 4 and 6. जो मैंने सर्किल किया बस वो बता दो, क्योंकि हमारा ताल्लुक ए सेट से है। तो इस वक्त मैं कहता हूँ 2, 3, 4, 6, फेयर इनफ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से बी कॉम्प्लीमेंट की, बी कॉम्प्लीमेंट से पहले मैं तो जानना चाहूंगा मेरे पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं क्या? सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा ना सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं जी। तो आप देखें सेट बी के एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें ग्रीन से मैंने हाईलाइट कर दिया। सेट बी के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको बेटा? सेट बी के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? Sir? सेट बी जी के, जी जी जी, sir. मैंने एक का कोड नहीं दिया, मुझे पता है, वो कोड देना है जो कि 8 है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही कह रही थी आप? एनी क्वेश्चन? किसने पूछा क्या क्वेश्चन? सर करके सो गई शायद। अच्छा, बी जो है वो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जल्दी बताओ बेटा, बी के एलिमेंट्स बताओ। 4 6 8 7 7 8 4 6 7 4 6 7 8, ये तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपके पास ये कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट से पहले, बी कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा मैंने आपसे कहा है कॉम्प्लीमेंट कब निकलता है? जब आप यूनिवर्सल से वो सेट माइनस करते हैं, ये बात तय है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा वो सेट तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो पता पड़ा कि हमें पता लगा हमें कॉम्प्लीमेंट सेट को आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत है, वो तो है आइडेंटिफाइड, लेकिन चांस ऑफ मिस्टेक बढ़ जाता है। अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो कर लेते हैं, जो परफेक्शन होता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वो डायरेक्ट कर लेता है। लेकिन अब मैं मेंशन करता हूँ कि चले आप उसमें बेसिक्स हैं आपकी, तो आप इसको ऐसे लिख दें जल्दी से, 4 5 6 7 8। ये बताओ, आपने मेंशन तो कर दिया, आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि 1 से लेके 8 तक है, सीक्वेंस में आपने दिए हैं। तो आपको पता है कि बी के मेंबर 4 6 7 8 है, तो इसका मतलब ये तो बहुत आसान है कि बी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। जल्दी बताओ रमशा क्या है? Sir, it will be 1 2 3 and 5. वाह, 1 2 3 5, ये कौन था, किसने रिस्पॉन्स दिया भाई? Sir, मेरा नाम है। हाँ जी, बिल्कुल सही जा रही हैं आप। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन होना है, क्या होना है बेटा? इन दोनों के दरमियान क्या होना है बेटा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बिटवीन व्हाट? इंटरसेक्शन बिटवीन बी कॉम्प्लीमेंट और ए। सर 6 will be shaded, I guess. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जी कौन बताएगा क्या आ सर रहा है? जी जी बोले बेटा। सर मुझे लग रहा है 6 वाला एरिया जो है वो शेड होगा। आपको लग रहा है 6 वाला होगा? आप का जो है वो फिर आखिर में देखते हैं कि आपको सही लग रहा था या Sir, नहीं। it will be 2 and 3. हाँ 2 जी, and ये 3. बिल्कुल 2 और 3। अब आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लिया, इसको यूनियन करना है सी से। इसकी यूनिटी किससे करनी है? जो मैंने निकाला इसकी यूनिटी किससे करनी है? C. इसकी यूनिटी होनी है, इसकी यूनिटी होनी है सी से। किससे होनी है? यहाँ पे लिखा हुआ ना यूनियन, यूनियन लिखा हुआ है, किससे होना है? So, सी से। sir, I think it will be 2, 3, 5. तो सी, सबसे पहले तो रिवील तो करो सी सेट क्या है, सी सेट है क्या? 3 3 4 5 and 8. 4 5, एक मिनट, 3 4 and 5 and 8, ऐसे ही है ना? अब अगर दोनों के Yes, sir. दरमियान, इन दोनों के दरमियान यूनिटी होती है, जब दोनों के दरमियान यूनिटी होती है तो पता पड़ता है मेरे पास 2 यूनिटी हो रही है इन दोनों के, तो मेरे पास कौन कौन से मेंबर्स आएंगे?
2 3 4 5 8 2 3 4 2 3 5 4 5 8 जी 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 बिल्कुल 2 3 4 5 8 ही आएगा, ऐसे ही आएगा ना? ठीक है, ये बात दुरुस्त है? यस और नो? यस और नो? 2 3 4 5 8, ये देखिए। अब आप देखें मैं शेडेड रीजन जो मैं कर रहा हूं वो क्या क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैं 2 शेड करूंगा, 2 शेड कर रहा हूं मैं। अब 2 शेड करने के लिए मुझे ये शेडिंग करनी होगी। ये देखिए मैंने 2 शेड कर दिया, ठीक है। और क्या शेड करना है? 3 शेड करना है, ये शेड कर दिया 3। और क्या शेड करना है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। 4 5 and 8 4, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। और क्या शेड करना है? 5 5 and 8 5 भी करना है, ठीक है जी। ये 5 हो गया, ये 5 भी हो गया। और बोलो बेटा, और क्या करना है शेड? देखें ये 2 हो गया शेड, 8 3 हो गया, और 8 हमने sir बिल्कुल सही कहा, ये 8 हो गया। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला ये 8। इसका मतलब जो शेडेड एरिया होगा वो ये एरिया होगा जो मैंने शेड किया है आपके सामने। तो ये शेडिंग इंतहाई आसान हो जाती है। जो आपका रिजल्टेंट आता है ना फाइनल, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। और फिर आप अप्लाई शेडिंग करते हैं, इसमें आप करते हैं अप्लाई शेडिंग, जो मैंने शेडिंग की है। तो इसको करने के लिए रैपिडली आप कहेंगे कि सर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, हम कितना टाइम लगेंगे? बेटा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो ना आप 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में तो हो ही जाएगा। तो बेटा 1 मिनट के अंदर 1 मार्क लेना सीआई का बेहतर है, मुनासिब है, अच्छा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये आपको? क्लियर हो गया बेटा? सर आप में कैन से यू जी जी बोलने बेटा। सर जो दूसरी वाली आपने डायग्राम दिखाई थी जहाँ पे ओनली ए एंड बी सारी चीजें मेंशन है, यहाँ पे ए एंड बी लिखा हुआ है और क्वेश्चन में भी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो आपको नहीं लगता सिर्फ इसमें 6 शेड होगा और बी कॉम्प्लीमेंट है तो देखें बी देखें देखें देखें, ये जो था ना, ये जो था ना सिनेरियो, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि मैं रीजन्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये सारे कीवर्ड्स जो बेसिक काम आएंगे वेन डायग्राम वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम मैंने कहा कि ये जो अभी जो हम डील कर रहे हैं शेडेड रीजन अनशेडेड रीजन, अब ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के देने के हद तक था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये यूटिलाइज होगा सबसे ज्यादा वर्ड वेन डायग्राम वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। तो इसको आप कोरिलेट ना करें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ ये देखें कि मैंने किया क्या है इसके अंदर। सबसे पहला काम मैं रिकैप कर देता हूं। अगर आप कहते हैं सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपने रीजन को कोड करना होता है। उस रीजन के कोड करने के बाद आप एलिमेंट्स को रिवील करते हैं सेट वाइज, और फिर रिवील करने के बाद आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास सेट के अंदर ब्रैकेट दिया हुआ था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आपने उसको सॉल्व किया, फिर उसकी यूनिटी कर दी। इंटरसेक्शन था, जाहिर सी बात है, जब ए सेट तो पूरा पूरा पता लग रहा था एलिमेंट्स ये हैं, बी कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने बता दिया यूनिवर्सल माइनस बी है, और इसी तरीके से उसका इंटरसेक्शन निकल गया। इंटरसेक्शन से फिर हमने जो हमने एब्स्ट्रैक्ट था उसका ब्रैकेट का, उसको हमने यूनिटी कर दी उसको सी से। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर हो गया बेटा? yes डन, sir हो गया clear ठीक है। यस सर। अब हम अब किसी तरीके कोई भी किस्म का, अब आपका काम है पास पेपर के मजीद क्वेश्चंस करना। मैं बिल्कुल सुपरफिशियली मैं आपको जो चीजें समझाना चाह रहा था, मैंने आपको स्किल एक टीच कर दिया है। उस स्किल को बेस बना के इसकी रिकॉर्डिंग बार बार सुन के अच्छे से, और इस टाइम को जो आपने यूटिलाइज किया है इंशाल्लाह ताला विद राइट इंटेंशंस, अपने दोस्तों को भी स्प्रेड आउट कीजिएगा। कोशिश करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा कोशिश करके। और मेरा यूट्यूब का चैनल आपके पास आपको पता होगा कि अदील फाजलानी है। सिंपली आप यूट्यूब पे लिखेंगे अदील फाजलानी, वहां पे मेरे लेक्चर्स मौजूद होंगे टॉपिक वाइज। सही है? तो देखता हूँ अगर ये टॉपिक अपलोड हुआ है तो ठीक है, वरना नहीं तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा आज की क्लास के अंदर, कोई इशू नहीं है। ताकि वहां पे भी जो है वो चैनलाइज हो जाए, ताकि इंटरनेशनल मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे मुस्तफीज हों। ठीक है, क्लियर बेटा? हम आगे जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए।
वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए जा रहे हैं। और हाँ, यूट्यूब पे तो आपको पता ना, बेल आइकन पे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये तो आपको रट यस गया सर। होगा, ये तो आपको रट गया होगा बेटा, है ना? ऐसा ही है ना? चलो आगे चलते हैं, 1 मिनट। ये इधर देखें, 1 मिनट। अब हम वेन डायग्राम के वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। और मैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, मैं चाह रहा हूँ पास पेपर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करवाऊं। ठीक है जी? अच्छा जी, अब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम अभी शो कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, बाज़ औक़ात जो है वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपके पास वो वर्ड प्रॉब्लम्स में तो आपको जो है ना सिंपली वर्ड प्रॉब्लम देते हैं और आपको कहते हैं कि भाई आपने सिंपली सॉल्व करना है। लेकिन बाज़ औक़ात वेन डायग्राम के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने रिवील करना बताया था आपको, और आपने वो रिवील बड़े आसानी से कर दिया था, अगर आपको याद हो। ऐसे ही है ना? अब आप देखें, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम है आपके सामने स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, 1 मिनट। ये आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है? इज इट विजिबल? सामने नजर आ रहा है बेटा? इसको बेटा ये विजिबल है आपको? ये देखें, Yes, sir. ये देखें। Visible है. Fit by your own. जी जी, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम है ना वेन डायग्राम का, यहाँ सामने मैंने मेंशन किया है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? इसको मैं थोड़ा 1 मिनट जूम कर देता हूँ। अब ठीक है? अब नजर आ रहा है बेटा? अब ठीक था कि पहले ठीक है ये? जी सर है. अब इज इट क्लियर? अच्छा जी बेटा, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको वर्ड प्रॉब्लम? अच्छा, Yes, sir. अब Visible है. ठीक है। अब देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करना सीखिए। अब ये मैं पहले फर्स्ट केस स्टडी बता रहा हूँ पास पेपर की, ठीक है? अब इसी तरीके से आगे भी हम वर्ड प्रॉब्लम की केस स्टडीज आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि आप देखें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अ ग्रुप ऑफ 40 चिल्ड्रंस मींस किसकी बात हो रही है? जल्दी बताओ। 40 बच्चे. अरे 40 बच्चे तो हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? सेट लैंग्वेज नोटेशन के फॉर्म में बताओ ना, तो क्या होगा? शाबाश। 40 चिल्ड्रन की बात हो रही है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन 40 चिल्ड्रन सेट लैंग्वेज और नोटेशन में क्या बनेगा? Universal. जी, Universal ये is equals to सबसे पहले किसने बताया था यूनिवर्सल सर? अपना नाम बताओ जल्दी से। मैंने बताया था। कौन है ये? मैंने बताया था। अच्छा, पहले आप लड़ लो अच्छे से, फिर मुझे बता देना फैसला करके। सर आप चलो, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, पता चल जाएगा। अच्छा, थर्ड एम्पायर बिल्कुल सही कहा आपने, ये जायज बात की है, हम सुन लेंगे। और फिर उनको फिर हमने अवार्ड भी देना है ना, वर्ल्ड कप भी तो देना है ना उनको, जिसने जवाब दिया। अच्छा मुझे बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं? जल्दी बताओ। 40। परफेक्ट। अच्छा, मैं वेन डायग्राम को सॉल्व करने का उसूल बता रहा हूँ कि इसके अंदर डेटा बनाने में बहुत यानी केयरफुल रहना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, और समझना बहुत लाजमी होता है। कितना भी बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम होता है, नो प्रॉब्लम बन जाता है, वरना इट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अदरवाइज इट विल बिकम बिग प्रॉब्लम। ठीक है? अच्छा देखें, 40 चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 40 है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? आस्क्ड व्हाट पेट्स दे ऑन। अच्छा ठीक है, ऑफ दीज चिल्ड्रंस 30 ऑन। अब देखें यहाँ पे सेट बनना शुरू हो रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इसने 13 कहा है। अब मुझे बताओ कि 13 ऑन जो कि ऑनरशिप ली जा रही है 13 की,
वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 13 ऑन जो कैट कह रहे हैं, ठीक है, तो कैट की बात हो रही है ना? तो मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, कैट की बात हो रही है या नहीं? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो इसमें 13 ऑन कैट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं 13 लिख दूं, और इसी तरीके से 5 ऑन बोथ। अच्छा, कैट के साथ इसका मतलब दूसरा जो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, वो है डॉग, ठीक है। तो नंबर ऑफ, वही बात है कि बोथ की बात हो रही है ना, बोथ का मतलब क्या है, कैट एंड डॉग मींस इंटरसेक्शन। कैट एंड डॉग कितने हैं, जल्दी बताओ, कैट एंड डॉग कितने हैं जो ऑन कर रहे हैं? 5. 5 ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो कैट भी ऑन कर रहे हैं, डॉग भी ऑन कर रहे हैं। अच्छा जी, अ कैट एंड अ डॉग 15। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं 15 ऑन नीदर अ कैट नॉर अ डॉग। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं कि 15 ऐसे हैं जो कि नीदर अ कैट नॉर अ डॉग। तो आपको पता है कि जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब ये है, ना वो हिस्सा सी का है, ना वो सेट सी का हिस्सा है, ना वो सेट बी का हिस्सा है। क्या ये बात दुरुस्त है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ वेन डायग्राम, ये देखिए, वेन डायग्राम बनाने का उसूल ये होता है कि आपके पास जितने सेट हैं उतने सर्कल बनेंगे। ये तो पता है ना आपको, बुनियादी बात, ये तो पता है ना सबको बेटा? जी सर. ठीक है बेटा, आप रिस्पॉन्स तो दें, लगता है सो गए। अच्छा, आप देखें, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, जो बाहर वाली जो फील्ड है, ये वाली फील्ड है, इस फील्ड में मैं क्या लिखूंगा, जो मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा था आपसे, जिसकी वजह से मैंने फौरन बना दिया ना, ये 15 और ऑन नीदर अ कैट नॉर अ डॉग। इसका मतलब ये जो 15 आएगा वो ये कहाँ आएगा, ये डेटा कहाँ पुट होगा सबसे पहले? सर वो यूनिवर्सल, सर इन द बॉक्स बट आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल्स। अब देखें, ये बहुत जबरदस्त बात कही है कि देखें, एक तो आपके पास कैट बन गया, ये बन गया डॉग। आपको पता है इसमें से जो कॉमन है कितने ऐसे हैं? देखें, 13 ऑन अ कैट, 5 ऑन बोथ। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि 40 बच्चे हैं, जिसमें 13 ऐसे हैं जो जो ऑनरशिप ले रहे हैं कि कैट के हवाले से, ठीक है, और 5 जो ऐसे हैं जो बोथ के लिए जो है कैटेगराइज कर रहे हैं अपने आप को। जब मैं लिखता हूँ बोथ, तो सबसे पहले वेन डायग्राम का उसूल है कि फिल इन द शॉर्टर पार्ट। द ग्रेट टिप टू सॉल्व वेन डायग्राम प्रॉब्लम, वेन डायग्राम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो फिल करना होता है शॉर्टर पार्ट। शॉर्टर पार्ट में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो कॉमन आता है, कॉमन बिटवीन टू सेट्स। ये जो है ना, सी एंड डी है। याद रखो, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये ऊपर जो ये यहाँ पे ये देखिए, ये वेन डायग्राम है, ये बड़ी हेल्प करेगा आपको। देखें यहाँ पे ये रहा, देखें मैं जो इसको बता रहा था ना जिस टाइम पे मैं आपको कॉमन, अब मैं कहता हूँ कॉमन इन ऑल कॉमन इन ऑल 3 सेट्स। वो कौन सा पार्ट है, कौन सा कलर है, बताओ, आइडेंटिफाई करो जल्दी से। इस वेन डायग्राम कॉमन इन 3 सेट्स कहाँ लिखा हुआ है, कौन से कलर का? Black. ब्लैक है, बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कॉमन इन बी एंड सी, वो कौन से कलर में? Dark blue. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ नीदर अ पार्ट ऑफ ए एंड बी एंड नॉर सी, तो वो कौन सा एरिया है? वाइड रीजन, बैकग्राउंड अदर देन द सर्कल्स। तो देखो, ये रीजन ये आपको बड़ा हेल्प करेगा वेन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए, कि समझना ये होगा कि ये रीजन्स जो है ना, इन रीजन्स को सेग्रीगेट करने का मकसद ये है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज नथिंग, अब आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ,
ए एंड बी का मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा, ए इंटरसेक्शन बी कहना चाह रहा था। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या कहना चाह रहा था मैं, ए इंटरसेक्शन सी, ये कहना चाह रहा हूँ। गेटिंग? इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन सी कहना चाह रहा हूँ। और जो ये वाला जो ब्लैक पार्ट है, इस ब्लैक पार्ट का मतलब ये था ए कॉमन इन ऑल थ्री सेट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अब बैक टू अर्थ, अपना क्वेश्चन क्या है, अपने क्वेश्चन पे जरा देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। कहाँ गया अपना क्वेश्चन? एक मिनट, ये रहा। अच्छा, अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन्होंने क्या पूछा हमसे, इन्होंने पूछा है कि 15 ऑन नीदर कैट नॉर डॉग यूजिंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन अ डॉग बट नॉट अ कैट। ठीक है जी। अब 5 तो आपने यहां तक क्लियर है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वाला पार्ट 5 मैंने प्लग इन कर दिया सेंटर वाले पार्ट में। जैसे कि ये सी इंटरसेक्शन डी है, गोया के सी इंटरसेक्शन डी है। ये बात क्लियर है ना? ये वही रीजन है ना, सी इंटरसेक्शन डी, अभी मैंने हाईलाइट करके बताया था। यस और नो बेटा, यस और नो? यस अच्छा, अब आप मुझे बताइए 13 जो है वो कैट, जाहिर सी बात है कैट के जो मेंबर्स थे जो ऑन कर रहे थे 13 थे। अच्छा 13 ऐसे हैं, 13 में अगर ओनली कैट नहीं लिखा हुआ, ऑन कैट लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे ओनली कैट लिखा हुआ है? ओनली कैट, देखो ओनली कब आता है, यहाँ पे देखो ओनली कब आता है, जब कीवर्ड नजर आए। अब यहाँ देखो ओनली का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हो रही है, इस येलो की। अगर ओनली भी कहूंगा मैं, सिर्फ की बात इसकी हो रही है। इसमें ओपन वर्ड का है ऑन कैट लिखा हुआ, ऑन कैट मीन्स कैट, उसमें से वो भी ऐड हो जाएंगे, मतलब वो भी एडेड है। इसका मतलब ये 13 है ना, ये जो 13 ऑन कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी 5 ऐसे हैं जो कि कैट के अंदर भी जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, और कौन से एक और पेट के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, डॉग के अंदर भी। तो मैं यहाँ पे आसानी से कह सकता हूँ कि 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 क्यों करूंगा, मुझे पता है कि 5 ऐसे हैं जो प्री सिलेक्टेड है, मतलब वो पहले से ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो ऑन कर रहे हैं कैट, टोटल 13 कर रहे हैं, लेकिन 13 में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि कैट भी कर रहे हैं, डॉग भी कर रहे हैं। तो मैं रिपीटेशन तो नहीं करूंगा, मैं कहूंगा 13 माइनस 5। तो मुझे बताओ 13 माइनस 5 करूंगा तो मेरे पास ओनली निकल आएगा। ओनली मतलब निकल आएगा का मतलब ये है कि ओनली जो कैट ऑन कर रहा है, तो उसका मतलब वो कितने हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऐसे चिल्ड्रंस जो कि ऑन कर रहे हैं कैट, कितने आएंगे जल्दी बताओ बेटा? 8 आएंगे ना? सर जी बोलें। सर आई हैव सेंट यू द सॉल्यूशन, लेकिन मुझे नहीं पता आंसर सही है या गलत है, आप देख लीजिए। ओनली ऑन कैट, अच्छा जी मैं देख लेता हूँ बेटा, एक मिनट। ओनली ऑन कैट, ठीक है। ये ओनली ऑन कैट का मतलब ये है कि जिसमें 5 हम ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं कैट के अंदर भी, डॉग पे, इस वजह से हमने सब्ट्रैक्ट किया। मैं आपसे अगर पूछूंगा सब्ट्रैक्ट क्यों किया, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से डॉग की बात जब कर रहे हैं तो याद रखें कि इस पूरे डेटा के अंदर डॉग का डेटा मिसिंग है। क्या आपको पता है डॉग की कितनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कितने ऑन कर रहे हैं, क्या आपको पता है? सर, हम सब प्लस करेंगे, मतलब 13 5 और 15 को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे 40 से, तो जो भी आंसर होगा वो हमारे नंबर ऑफ डॉग्स हो जाएंगे। तो मुझे ये तो बताओ पहले, रीजन को तो बेटा, रीजन को तो आप सपोज करें एक्स, वो तो बात ठीक है, वो तो बात की अब आप कर सकती हैं कि जैसे कि आप कह रही हैं कि आप इन तीनों को ऐड करें, प्लस वो स्टूडेंट्स, वो चिल्ड्रंस जो कि रोल प्ले नहीं कर रहे, वो हिस्सा नहीं ले रहे कैट के अंदर, डॉग के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कैट के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो उसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा क्या, मेरे पास बन जाएगा 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 15 बराबर किसके है बेटा, जल्दी बताओ? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना था हमारा बेटा? 40 था या नहीं था? था ना? अब इनको ऐड करो जरा, 15 प्लस 5 और ये 28 हो गया, तो ये बन गया x प्लस 28।
इज इक्वल्स टू 40, तो ये बन जाएगा 40, x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 8, तो ये बन जाएगा 12। ये 40 12 माइनस, आएगा सर। जी राहिमा आपका 12 आ रहा था आंसर? नहीं सर। जी, अब ये आ गया 12। अब आप देखें 12 ऐसे, क्योंकि इन्होंने पूछा ये था फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ओन अ डॉग बट नॉट अ कैट। तो इसका मतलब ये है ऑन अ डॉग नॉट अ कैट का मतलब ये है कि प्योरली जो इंटरेस्टेड ले रहे हैं, जो ओन कर रहे हैं 12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास एक केस स्टडी हो गई इसकी वर्ड प्रॉब्लम की। अब मैं एक और, इससे पहले कि मैं दूसरे वर्ड प्रॉब्लम पे आऊं, आप मुझे बताइए कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गया है या नहीं? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सबसे पहले तो मुझे बताइए। सर आप एक दफा मेरा सॉल्यूशन चेक कर लें काइंडली। अच्छा, एक मिनट। राहिमा आपने कहा, आपने किस में भेजा बेटा? यही भेजा है सर। हाँ ठीक है ठीक है, ये आपने इस पे भेजा ना, MS टीम्स पे भेजा। एक मिनट, ये मैं देख रहा हूँ। ये तो ओए होए, ये आपने क्या कर दिया? ये आपने एक्स क्यों सपोज किया बेटा? एक्स तो सपोज नहीं करते ना बेटा। एक्स तो जब करते हैं जब आपके पास अननोन हो। अननोन तो नहीं, गिवन है ना हमारे पास 5। तो इसमें आपकी गलती जो है ना, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकती हैं आपकी गलती क्या है। आपकी गलती ये है कि आप बेटा सपोज कर रही हैं उस चीज को जो कि डेटा गिवन है। आपके पास 5, आपने प्लगइन सही किया बेटा। राहिमा मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं आपका सॉल्यूशन देख पा रहा हूँ। और एक मिनट में जरा शेयर भी कर देता हूँ, लेकिन अभी टाइम लग जाएगा। तो चले, आपको समझ में आ रही है कि आपकी गलती क्या है राहिमा? देखें, आपने प्लग इन कर दिया, आपने अननोन उसको सपोज किया जो कि गिवन है डेटा। अब उसके बाद बार बार आपकी रिपीटेशन हो रही है उस डेटा के अंदर। आपका तरीकेकार जो स्टेप्स जो है ना, समहाउ कहीं मुनासिब लग रहे हैं, लेकिन आपके जो है वो ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम हो गई है। डेटा को जो ना मिक्स प्लेट कर गई है असल में ना। तो मैंने सीक्वेंस में जो आपको तरीकेकार बताया वो आपको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है जी, सही है। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं पास पेपर का। वो आपके सामने अभी आपको शो कर रहा हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो ये कर सकते हैं। और आप मुझसे शेयर भी कीजिए जल्दी, ये आपका राइट बनता है। अब आपको थोड़ा सा काम करने का लिए आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ये इधर देखिए, मैंने कॉपी, ये यहाँ पे, ये आपके सामने आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए, क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा? Yes, sir. हाँ जी, ये जल्दी से मुझे करके दिखाओ, जल्दी जल्दी देखो मैं कौन करके दिखाता है। टाइम कम है, मैं आपको सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी बस इसको कॉम्प्रीहेंड करो। टेक्निक वही है, जल्दी डेटा बनाओ, फटाफट डेटा बनाओ और प्लग इन करो वैल्यूज। देखते हैं, कोशिश करो बेटा, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। मैं कर लूँ, आप कहते तो मैं करूँ या आप खुद करेंगी? What do you say? Can I do it for you or will you do on your own? आप बता दें, कोई इशू नहीं है। If you're going to do on your own, so Sir, it's easy. We can do it. yes, I think you have to। क्योंकि मैंने आपको एक टेक्निक्स बता, सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है ना वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप यूज टू हो जाएं। एक बार थोड़ा सा ड्राइव करना आ जाएगा ना वर्ड प्रॉब्लम, तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है।
जी बेटा, आप में से किस किसने कर लिया है? आप में से जिसने कर लिया वो जरा गौर से देखें कि आपने ऐसे ही किया है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, टाइम कम है हमारे पास, थोड़ा सा इसको कंक्लूड करेंगे ना। ठीक, ये ऐसे हो गया, 1 मिनट। ठीक है जी, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा सेंटर पे कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये बताइए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? लेबलिंग। लेबलिंग हो गया, एक्सीलेंट। आफ्टर लेबलिंग ये हो गया लेबलिंग। आपने एक को कॉमेडी लिख दिया, एक को एक्शन लिख दिया, ये बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद स्टेप नंबर 2, जल्दी बताओ। स्टेप नंबर 2, फिल इन द शॉर्टर पार्ट। ये कहा था ना, शॉर्टर पार्ट कौन सा है हमेशा याद रखो। ये मैंने कहा था ना, जैसे कि ये है सी इंटरसेक्शन ए, याद आ रहा है? तो यहाँ पर यही 15 आएगा। ये सही से जी, 15 आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जब यहाँ पे 15 आएगा तो उसका मतलब ये है कि सी जो है 26 है। अब 26 जो है आपके पास जो यस कॉमेडी सर। है ऑलरेडी ऑलरेडी 15 इसमें से हिस्सा ले रहे हैं, तो हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पता पड़ा कि हमारे पास कितने बाकी बचे? 11, राइट। मतलब ये जो 11 खालिसतन वो हैं जो कॉमेडी में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा जी, और बात हो रही थी ए की जो हमें पता नहीं था। अच्छा, और इसके अलावा और क्या था? ऑप्शन में एक होता नीदर। नीदर एक्शन नॉर कॉमेडी का मतलब ये कि 8 जो रीजन था वो आउटर रीजन था अदर देन द सर्किल। तो पता पड़ा कि इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि आप तीनों चारों को ऐड करेंगे और बराबर 50 के, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था ना बेटा, याद आ रहा है? ये ऐसे Yes, sir. ये ऐसे। अब आप देखें, इसको हम क्या कर रहे हैं? हम करते हैं ये 11 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 8 बराबर किसके बेटा, जल्दी बताओ। शाबाश। आप में 50। से जिस आप में से जिसने ऐसे ही किया, अपने आप को टिक अपने कॉपी पे टिक लगा दीजिए और स्टार्ट दे दीजिए अपने आप को। ठीक है, अच्छा जी, ये हो जाएगा 11 प्लस 15 प्लस 8 कितना हुआ बेटा? ये हो गया 34। 34 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 50। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 30। जी बेटा, आपके पास आंसर सर 16 आ रहा आंसर है? है 16। जी जी, यस सर। आंसर जी, जिस इसका 16 आंसर आ रहा है इसका मतलब उसने 100% सही किया है। आ गया ठीक सर है जी 16। जी 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 जी, मैं भी वही कह रहा हूँ। आप में से जिसने ये आंसर निकाल लिया है वो बिल्कुल सही निकाला है, दैट इज 16। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ओवरऑल आपने कैसे गो थ्रू करना है। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको डील कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? यस और यस नो बेटा? सर आ गया। और आप Sir, इसकी I have प्रैक्टिस कीजिएगा। यस यस। सर यहाँ पर हमारे पास 26 को कॉमेडी पसंद थी और 15 को कॉमेडी एंड एक्शन दोनों पसंद थे, राइट? अगर सर ऑपोजिट हो, लाइक कि जिनको दोनों पसंद है उनका नंबर ज्यादा हो और सिर्फ कॉमेडी वालों का कम हो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखें, अब आप देखें यहाँ पे लेट से कि आपको, मैं आपसे ये बात कहूंगा, आप सिर्फ इसको फोकस कीजिए। ये जो है ना, ये वाला फोकस कीजिए इसको। घूम फिर के कहानी
इन्हीं टर्म्स के अंदर आएगी। अगर वो बात करता है लेट्स से ओनली, अगर कहीं ओनली की बात हो रही है तो मीन्स वो रीजन है जो कि पार्ट, ये वो रीजन ओनली ए का पार्ट है जो कि बी का और कॉमन का रीजन नहीं है, ना ए एंड सी के कॉमन के अंदर आएगा ना ए एंड इंटरसेक्शन बी के। अब वो कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, केस स्टडी कहीं भी हो सकती है। ये क्वेश्चन जो आपने किया बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया कि अब यूं हो तो फिर क्या हो। तो मैं तो कह रहा हूँ आप तो क्वेश्चन बनाने वाले में बन जाएंगे ना, आप पूरी केस स्टडी बताएंगे शुरू से लेके, ऐसी केस स्टडी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे कीवर्ड्स हो जिसमें इन्होंने कहा एट लाइक नीदर एक्शन नॉर कॉमेडी। इसी ये तो दो सेट्स हैं, इसी तरीके से तीन सेट्स का अगर कोई भी वेन डायग्राम होता है जो आप बनाने जाते हैं, तीन तीन सेट्स के अंदर सबसे शॉर्टर पार्ट आपका आता है वो मिडिल एरिया होता है जो कि ब्लैक वाला रीजन है। आपको मैंने कहा था इसको आप एक बहुत जरूरी काम कर दीजिए। आप वेन डायग्राम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अपने माइंड में बनाइएगा कि ये वो रीजन्स हैं जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट करने हैं, ठीक है। इसमें ये ओनली बी आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ओनली बी को मैं किसी और अंदाज में क्या कह सकता हूँ, ओनली बी को कोई भी चीज हो सकती है। जैसे अगर मैं ओनली बी अगर मैं इधर देखूं जो हमने सॉल्व किया है वो बेसिकली क्या किया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एक्शन नॉट कॉमेडी। मतलब अगर ये अगर फॉर एग्जांपल एक्शन होता, ये जैसे अगर ये एक्शन होता, ये एक्शन है, ये एक्शन है नॉट कॉमेडी, ऐसा ही है ना सोहा, नॉट Yes, sir. नॉट कॉमेडी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्शन नॉट कॉमेडी, या तो ये कह सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ और, या तो पर मेरे पास ये लिखा होगा ओनली बी those who are interested find out the number of students who only interested, ओनली लिखा होगा ओनली इंटरेस्टेड इन कॉमेडी। बाज़ औक़ात ये भी रिफ्रेश करके सवाल आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन कोई सी भी हाइपोथेटिकल केस हो, लेकिन आपको इन रीजन को आइडेंटिफाई करना आ गया, इन कीवर्ड्स का रोल प्ले आ गया ना, तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी किस्म का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए आपको डेटा बनाना लाजमी होता है। डेटा जब वंस आप बना लेते हैं, आप सबसे पहले टारगेट बनाते हैं कि आपके पास गिवन क्या है, अननोन क्या है, और फिर जब वेन डायग्राम के अंदर प्लग इन करने जाते हैं वैल्यूज को, तो आप फिल इन द शॉर्टर पार्ट फर्स्ट, ठीक है। शॉर्टर पार्ट के बाद जो लेफ्ट ओवर डेटा है उसको फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ाते आप सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? Yes, sir. क्लियर है ना? अच्छा एक काम करें, अब आप एक काम कीजिए, आप इसकी जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले, बल्कि मैं आपको इसका वो भेज दूंगा, इसकी जो ना क्या कहते हैं फाइल जो है ना नोट्स की, ये फाइल मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और बाकी आप इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप बाद में भी सुन लीजिएगा। MS टीम्स में जो हमारी क्लास का पार्ट नहीं है, जैसे कि किसी और क्लास से हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम मैं वीडियोज जो है तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? Yes, मेरी आवाज sir. Audible है. हाँ ठीक है। तो मैं YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो YouTube पे आप जो जो बच्चा एक्सेस नहीं कर पा रहा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को उस लिंक से, तो YouTube को एक्सेस करके आप वो कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन बटन जो है वो भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और बाकी फिर जो भी क्वेरीज हो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। और इसके अलावा और कुछ तो नहीं पूछना किसी ने बेटा? मैंने प्रिसाइजली जितना हो सका है नहीं मैंने sir, all clear. पूरे चैप्टर को नो कवर सर। करने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी कोई चीज अगर इक्का दुक्का रह गई हो तो वो मैं माजरत खा हूँ, और फिर इंशाल्लाह उसको फिर कभी कवर हम कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल मैंने कोशिश जरूर की है कि वो कंटेंट्स जो है जो आपके लिए लाजमी समझना होते हैं वो हों, ठीक है बेटा? सही है? ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योर Yes सेल्फ। sir, understood. ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज Thank you सर। sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Officer. अल्लाह हाफिज।